vibrant ladies, can I request you guys, if you can show up on the screen until unless there is, because if I can see 4 bright faces, 5 bright faces, I'm sure I can see more. मेरे से किसी को कोई खतरा नहीं है. Yeah, 1 added. You guys can do it. Yeah, 2. Anjali is there. Anjali, why don't you come up the first go always? Why every time Hannah, you wait? This is the 3rd time we are interacting, you know. You should be more confident. Yeah, Ayushi joined. Yes, sir. Others? No, they're not there. Yeah, Amisha Sir, also just a joined. request. Yeah, considered. So with your permission, can I exit because I have a meeting going on and I'll just join as soon as it gets over. No issues, Yashika. No issues. Absolutely green on go. Okay. Thank you, sir. Okay, guys. Today we are going to talk about apna PPDT. I said, you know, in the last session we had certain, you know, discussions. You had certain queries and questions, and I was trying to answer them. Today we will not get into any question answer business, but I will tell you something what little I know about the PPDT. Why PPDT? Because PPDT, I think, in the entire game, this I consider to be the most difficult part. PPDT में पहले दिन, first day, first show. Whatever you do is going to decide whether you are going the other side of the line and you see the full movie trailer for the balance of the 5 days, or you are going back and boarding the bus back to railway station or airport. I'm sure given a choice, everybody would like to cross the line and go other side and want to explore कि what is happening behind these 4 walls. Ground पे क्या होता है, कैसे होता है, isn't it? देखना चाहोगे? Yes or no? Yes, sir. हाँ. Yes, sir. So अगर आइडिया क्लियर है कि भाई पूरे साल भर मेहनत करिए, एग्जाम क्लियर किया है, and we have come this far, so it should be very clear in your head that I have not come so far only to come this far. ठीक है? The idea is to go beyond, and this is going to happen once you clear your PPDT. Now, before I come to per se PPDT, एक छोटा सा myth है जो लोगों के दिमाग में है, that is OIR, है ना? Officers Intelligence Rating जो आपकी होती है, उसमें मैंने देखा कैंडिडेट कहते हैं ये है ना सिर्फ एक नॉर्मल सा वो है, कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ है ना क्वालिफाई करना होता है. No, that is not a correct way to think. You know, don't frame your opinion and spread misinformation if you don't know about anything. Forge me anything which is designed, you know, it is with a purpose. So have faith in the system. OIR is an important part. I think there is some change. What my candidates are telling, there is some change in the OIR. Now, 70 questions have been given to them. So उसको आपने ईमानदारी से करना है. You must practice for it daily, at least for some time, so that your body and mind is trained in a manner कि yes, I can take on these number of questions and I can do it well within the given stipulated timelines. ये आपकी कोशिश होनी चाहिए. ठीक है? तो OIR को हल्के में आपने नहीं लेना है, because it holds merit. And जब आपकी ओवरऑल मेरिट बनती है तो उसमें दोनों की परफॉर्मेंस जोड़ी जाती है. So why we want to goof it up only for a negligence or a casual attitude? वो नहीं करना, तो OIR को भी आपने सीरियसली लेना है. ठीक है ना? नाउ हम बात करेंगे PPDT के बारे में. यू नो, PPDT किस लिए इंट्रोड्यूस किया गया? किसी जमाने में नहीं होता था, बट बाद में है ना, दिस सिस्टम हैज कम. PPDT एग्जैक्ट मैं भी नहीं जानता, बट बेस्ड ऑन माय यू नो अंडरस्टैंडिंग, माय एक्सपीरियंस, you know, my interaction with people who are there on ground, what I have understood, if I compare it to, you know, what was situation in 22 years back, उस समय number of applicants were little low. जैसे जैसे समय बढ़ा है, लोगों में awareness आई है, access to education, digitalization and other things, you know, the number of applicants है ना are there. गांव से remotest of the area, people know कि I can also go to NDA. You know, there is an option like this. What are the advantages of government naukri? You know, that pride with a uniform. A lot of things has happened in last 2 decades. So people came up with this idea कि होना क्या चाहिए, जब ज्यादा लोग होंगे तो आपको ज्यादा फैसिलिटीज लेके आनी पड़ेगी. But when ज्यादा आपको सेंटर बनाने हैं, तो there are a lot of issues related to that. You require more, you know, budgets. You require finances. You require, you know, land acquisition, administrative resources, manpower, staff, so many things. So with the present commitment, probably that was not a very viable or doable solution at that point in time. So with that background, probably it has been designed in a manner that we can come up with a screening process. So जहाँ पे आप you're putting it kind of a rider and check at one additional stage कि यहाँ पे we'll identify and a few potential among
the best among the batch, and they are taken inside and we carry on with a normal procedure of screening for the balance 5 days. So शायद इसलिए इंट्रोड्यूस किया था. And अभी कई लोग कहते हैं कि सर PPDT is not fair system, but then again the only thing is there are two ways. पहला ये कि हम क्रिप करते रहे. सर वो एक तो बिल्कुल नहीं बोला था, उसको अंदर ले लिया. सर उसकी स्टोरी ऐसी थी, वो अंदर चली गई और मुझे बाहर निकाल दिया. वहां पे ना तो किसी का दोस्त है ना दुश्मन है. वहां पे जो लोग बैठे हैं, they are professional and believe you me, they know their job very well, better than anyone else. They know what exactly to be done, how it is to be done, and they are doing it with complete shiddat. So have some faith in the system. दूसरा तरीका है, you please accept what the reality is. वहां पे 30 सेकंड पिक्चर देखने के लिए मिलेंगे, सबको बराबर टाइम मिलेगा. 4.5 minutes will be given to you to write a story. Everybody is going to get the same time. About 45-60 seconds will be given for the narration. Everybody again getting the same time. And then you are exposed to the group discussion. So you have to show your potential. So in terms of opportunity, in terms of time, in terms of environment, everybody is getting the same thing. उसमें कोई किसी के साथ में भाई बंदी या भेदभाव नहीं है. So if we keep these factors into mind, my take on this, one has got no right to complain. So the best idea is accept the reality and please perform when you are given that time and environment. Okay? So आज के बाद में कभी उसने ऐसा किया, वहां पे ऐसा था, ये नहीं बोलना है. सबको टाइम और फैसिलिटी, एनवायरमेंट बराबर दे रहा है. आप करके दिखाइए. प्लीज परफॉर्म. ओके. नाउ व्हाट इज PPDT? PPDT is picture perception description test. As the name suggests, a picture. That means a picture will be shown to you. Most of the time it is a hazy picture, है ना, जिसमें clearly नहीं दिखाई देता कुछ ज्यादा. Many times you are given that kind of picture. So आप अलग एंगल से देखते हो और कुछ ना कुछ आपको दिखाई देता है, you know. And उसके बाद में perception. आप जो पिक्चर देखते हो उसको देख करके आपके मन में क्या आता है. पिक्चर एक होगी लेकिन 15 लोग अलग अलग तरह से देखेंगे. ठीक है. बच्चे की एक फोटो दिखाओ तो किसी को बड़ा लगता है कि अरे वाह यार बच्चा है, क्यूटनेस दिखाई देती है, क्यूटनेस ओवरलोडेड, है ना. किसी को मदरली फीलिंग आती है, किसी को लगता है वो भाई प्रॉब्लम बैठी है मुझे सामने दिख रही है, ये है ना. ठीक है. At the same time, somebody look at the girl, somebody will have a feeling of respect. Somebody who's very अपना poor value system है ना, he probably will not have a very good thought about a lady. So एक आदमी के देखने के 100 नजरिए हो सकते हैं. ठीक है. How you perceive that picture, that is the second part of the PPDT. And third is description. आपने जो देखा पिक्चर पे और जो परसीव किया, now it is time to describe it. आप बताएंगे कि मैंने क्या देखा, क्या महसूस किया, and what is the overall outcome of my thought process. And इसी चीज का ये टेस्ट. So that's why it is called picture perception description test. Clear so far with me? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now Yes, understand sir. this thing. आपने ये चीज जब सेलेक्ट हो जाते हो, अंदर चले जाते हो स्क्रीनिंग इनके बाद में, तो अगेन यू हैव टू राइट 12 स्टोरीज. बट वहां पे सहूलियत आपको ये है कि यू डोंट हैव टू नरेट दैट पिक्चर. यू डोंट हैव टू गेट इनटू ग्रुप डिस्कशन. यहाँ पे इट इज लिटिल डिफिकल्ट देन दैट. आपने पिक्चर परसीव करके इन टर्म्स ऑफ टाइम वैसा ही है. पिक्चर सिर्फ थोड़ी हेजी हो सकती है. एक ये हो सकता है चैलेंज. दूसरा ये है आपको नरेशन करना है सबके साथ. एंड द थर्ड थिंग व्हिच इज डिफरेंट इज, Rishi, please put yourself on mute mode. Yes, stay on mute mode till further instructions. And the third thing which is different is आपको group discussion में हिस्सा लेना है and you have to prove your point कि आपने क्या देखा, क्या समझ में आया. Okay? Now PPDT आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास में जो भी टाइम है ना, उस टाइम में आपने ये परफॉर्म करनी है, तब आप लाइन क्रॉस करेंगे. So please take it very seriously and give your best. And you give a performance as if your life depends on it. कि अगर ये काम आज सिद्ध होगा तो हम अंदर जाएंगे, अदरवाइज बात नहीं बनेगी. ठीक है ना. ओके. नाउ हाउ आई लुक एट PPDT. अगर मैंने ये काम करना हो तो मैं कैसे करूंगा. ठीक है. आई विल टेल यू एग्जैक्टली द सेम थिंग, बिकॉज आई नेवर टेल ना कि इसको ऐसे कर लेना, आप वैसे कर दीजिए. नो, I personally am putting myself into this. If I had to face the PPDT, what should be my approach, which I think is a good approach. Now, I would do it in 3 phases, as I just mentioned earlier. Number 1, I perceive the picture and I do writing part. Perception के लिए आपको जो perceive करना है, you get 30 seconds. To put your pen to paper, you are going to get 4 minutes and 30 seconds. Total 5 minutes.
5 मिनट 4.5-5 मिनट आपको मिलेंगे जिसमें आपने परसीव करना है, मन में कहानी बनानी है और उसके बाद में उसको पेपर पे उतार देना है। 5 मिनट्स। एक पढ़ा लिखा नॉर्मल अच्छा ओवरऑल वेल बैलेंस्ड पर्सनालिटी वाला कैंडिडेट अगर साफ सुथरी सोच रखता हो तो 5 मिनट में मैजिक करना इज नॉट अ बिग डील। दैट्स माय टेक ऑन दिस। Now I'll talk about the first part. Perception. किसी भी चीज को आप देखते हो तो परसेप्शन तब फॉर्म होता है जब आप उसको ढंग से देखते हैं, when you observe it carefully. ठीक है? When you observe carefully. अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये क्या है ग्लास के अंदर? क्या भरा हुआ है? कितना भरा हुआ है? दिस कोक कितना भरा हुआ है? Half glass, sir. Rishi, please go on mute mode. You will not speak, Rishi. There's a lot of disturbance from your end. Yeah, you just be in the listening mode. Now Sir, somebody will say, sir. Sir, it is So a your half. glass is half full. half filled. एक ने बोला half full of water, दूसरा कहता half full of air, Carbonated तीसरा बोलेगा drink, सर half of air and half this thing, glass is completely full. This is your perception. 3 लोग हैं, तीनों लोगों का अलग अलग नजरिया देखने का। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं सबसे अच्छा नजरिया किसका लगा? सबसे अच्छा नजरिया किसका है? यस प्लीज टेल मी। हाफ वाटर, Sir, हाफ एयर half और full फुल? Half air. Half Pardon? air or half full. हाँ, दैट मींस Half पूरा भरा हुआ है, हाफ विद जी. एयर एंड हाफ विद वाटर, मोर पॉजिटिविटी, आधे की बजाय पूरा भरा है। सो एक बेसिक सी चीज है, परसीव किया बट थोड़ा सा गहराई से देखा। ये आपने सुनी हुई होंगी ये बात, कोई नथिंग न्यू आई एम टेलिंग यू। ओके, तो आप जब परसीव करते हो प्लीज है ना बी ऑब्जर्वेंट एंड आप चीजों को ध्यान से देखिए। अब कैसे देखना चाहिए, ओके, व्हाट आई विल डू इज आपको एक पिक्चर दिखाई गई, ठीक है? उस पिक्चर के अंदर एक आदमी क्या दिखेगा सर? 1 बॉय एंड 1 गर्ल फॉर एग्जाम्पल, और पीछे 2-3 लोग खड़े हुए हैं। दूसरा आदमी कैसे देखेगा सर? दे 1 बॉय एंड 1 गर्ल एंड सर उसमें बोथ आर डॉक्टर बिकॉज दे आर वेयरिंग कोट काइंड ऑफ थिंग एंड आई कैन सी द स्टेथोस्कोप अराउंड देयर नेक. So the second candidate has identified the profession also. So the picture is going to be more realistic. है ना? He'll be able to bring more life to the picture given. तीसरा होगा वो बोलेगा सर 1 male 1 female both doctors with stethoscope around the neck but they are very tense because they are sitting like this. So mood is not very positive. है ना? He is correlating or she is correlating. तो उसने mood भी ठीक से identify किया. Then फिर पीछे background में दिखाया कि स्ट्रेचर पे कोई बॉडी लेटी हुई है, तो वो भी नोट करेगा कि बैकग्राउंड में क्या दिया हुआ है। सर इन द बैकग्राउंड आई सी समथिंग लाइक दिस। आप जितनी ज्यादा ऑब्जर्वेशन करेंगे बट इसका मतलब ये नहीं है आप ये बोलो कि सर उसकी है ना ट्राउजर्स के अंदर सर देयर आर लॉट ऑफ लाइंस या उसने चेक वाली शर्ट पहनी हुई है। दीज आर इररिलेवेंट डिटेल्स, इसका कोई लेना देना नहीं है। पिक्चर इज इन ब्लैक एंड व्हाइट, सो प्लीज कीप इट इन दैट शेड ओनली, डोंट लुक फॉर ग्रे, रेड, येलो एंड अदर कलर्स व्हिच आर नॉट देयर। Important things एक समझदार कैंडिडेट को पता होना चाहिए कि when I have to look to the picture, है ना, it is a race against time. All you have got in your pocket is for 30 seconds. 30 सेकंड में आप कितना देख सकते हो? आप ये देख सकते हो, और आपको फॉर्मेट में दिया गया है ऑलरेडी, आपको बताया गया। जब स्टोरी बता रहे हैं आप पहले बताएंगे कि भाई कैरेक्टर कौन है, जेंडर बताएंगे, मूड बताएंगे, ठीक है? ये चीजें आपने नोट करनी है। सो प्लीज नोटिस, ठीक है ना, कि भाई उसकी उम्र तकरीबन कितनी है, जेंडर तो इट इज क्लियरली अपरेंटली विजिबल, ठीक है? देन उसके बाद में मूड कैसा है, अगर प्रोफेशन का कोई आइडिया लगा सकते हो आप, वेल एंड फाइन। अभी एक आदमी ने टाई बांधी हुई है, ठीक है, पीछे कंप्यूटर है और कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है, इस तरह का कोई सीन है, बट कैंडिडेट ने वही कट कॉपी टेम्पलेट याद करी हुई है कोचिंग एकेडमी में, वो कहता है ही इज गोइंग फॉर द एसएसबी। अरे कम ऑन, हैव ए हार्ट यार। नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो सकता, बट बी मोर रियलिस्टिक, है ना? एवरी स्टोरी डज नॉट लैंड अप एट द एसएसबी सेंटर। कुछ कैंडिडेट हैं उसको हाथी भी दिखा दो, कहता है सर वो हाथी के ऊपर बैठ के गया था एसएसबी सेंटर एंड ही क्रैक्ड हिज एसएसबी, ठीक है? यू शो ए कैमल, वो कहता है सर कैमल पे बैठ के गया था, ही रीच्ड द एसएसबी सेंटर एंड ही क्रैक्ड द एसएसबी, ठीक है? कहीं एक्सीडेंट हो गया, वो कहता है सर रास्ते में जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, बट वो दोबारा उठ खड़ा हुआ, दौड़ के पहुंचा एसएसबी सेंटर एंड ही गिवन ए क्रैकिंग परफॉर्मेंस, गॉट सिलेक्टेड। एवरी स्टोरी इज वेरी रिलेटेड टू एसएसबी, एनडीए, सीडीएस, आईएमए, ओटीए और अबाउट आर्मी। ऐसे गलती करी आप लोगों ने कभी? आई एम नॉट आस्किंग व्हेन एंड हाउ मेनी टाइम्स, बट जस्ट टेल मी, है ना, रेज योर हैंड्स एंड इस तरह ऐसे एक दो बार मन में ख्याल आए, कोशिश भी करी हमने, किए किसी ने?
Okay, good. I'm happy you are Yes, being sir. honest. हाँ, तो ये नहीं करना. Yes, sir. हर स्टोरी में आप SSB क्रैक कर दोगे, that is not going to quantify कि you are a very strong contender. You know, it shows your desperation. मैंने कल भी बताया था, don't be desperate, be passionate. कि कोई भी काम है, मैं अच्छे से करके दिखाना है मैंने. वो ज्यादा मायने रखता है rather than showing your desperation. Okay? Okay. तो आपने क्या करना है? मेन कैरेक्टर आइडेंटिफाई करना है, एज, जेंडर, मूड एंड प्रोफेशन एंड द बैकग्राउंड ऑल्सो. ये कुछ एक चीजें हैं जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए. ठीक है. अभी नाउ बैकग्राउंड में क्या दिखा रखा है? बिल्डिंग दिखा रखी है बड़ी, बट वो कुछ बताता है कि एग्रीकल्चर में उसने कुछ क्रांति लेके आ गया. अरे यार, कम ऑन, हैव ए हार्ट. पीछे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है एंड यू आर टॉकिंग ऑफ एन एग्रीकल्चर एंड न्यू टेक्नोलॉजीज एंड अदर थिंग. इट डजंट सिंक वेल. यू आर गोइंग अगेंस्ट द बेसिक्स. जो चीज दिख ही नहीं रही ग्राउंड पे, आप वो जबरदस्ती वहां पे प्लांट कर रहे हो, यू विल पे हेवी पेनल्टी फॉर दैट. सो जो बेसिक बुनियादी चीजें हैं वो आइडेंटिफाई कीजिए. नाउ एन एग्जांपल हियर, अगर भीड़ में है, मैंने बताया एक पिक्चर है, जैसे बहुत सारे उसमें लोग हैं ना, ऐसे बोर्ड लेके खड़े हुए हैं, वोट 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 वोट, एंड देयर आर टू गाइज, वन पुलिस इंस्पेक्टर स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट साइड एंड वन गाय लिटिल बॉलेट एंड ही इज ट्राइंग टू कंट्रोल द क्राउड. इट लुक्स लाइक, एंड द बैक इज सीन. सारे लोग लिखते हैं कि उसमें इलेक्शन लड़ने जा रहा था, दिस एंड ऑल दैट, एंड दे गिव पॉलिटिकल ओवरटोन टू द स्टोरी. अरे भीड़ के अंदर दो आदमी कुछ अलग से करते हुए दिख रहे हैं. इट इज एज सिंपल एज दैट. व्हाई डोंट यू थिंक कि ये आदमी इतने लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है? व्हाट कैन बी द पॉसिबल इशू? ये आदमी इसमें क्या रोल अदा करने वाला है एंड हाउ इज गोइंग टू हैंडल द सिचुएशन? अगर आप इतना लिख पाएंगे तो बल्ले बल्ले, नो प्रॉब्लम. ठीक है. लेकिन वो भीड़ में जिसका सबसे बड़ा बोर्ड दिखाई देता है, लिखा था ना वोट, आप कहते हो सर ही इज द लीडिंग कैरेक्टर, ये बनेगा नेता. This is where you go wrong. So when I say observe things, observe carefully and practically. Okay? Now, आपको क्या क्या possibilities? Yeah, So Ishita. sorry to interrupt you, sir. You said that if you do PPDT, you will do it in 3 phases. First is you said perceive and write. The other 2, what are they, sir? Don't Sir, worry. can you please You can iterate? watch in the video subsequently. You can keep making your notes. I suggest don't make notes if you really want to get, because I will probably, this is the last time I'm coming here. I don't know when I'll get time thereafter. Don't make any notes, not required. Just try to absorb what I tell you. Try to comprehend. And sawal puchna when I finish my session. Don't make any notes. I will upload. Amber is already doing the recording part. He'll record it and I'll put it in my channel as such. As such, I don't know much about technology. That's why Amber is here to help me. And he is the guy who is responsible for making my life miserable, who got me on the social media. I was telling other day also, he is the guy, Amber. ठीक है. इसने रायता फैलाया ये, और जो मुझे यहाँ लेकर के आया है ना, and now very conveniently he has gone out of the canvas. So today I got hold of him, and you will also suffer with me. Okay. अरे come on. So it is because of him I am here. मैं आपको तीनों पार्ट बताता हूँ. आप पहले सिर्फ सुनना इशिता, ठीक है? Notes is not going to help. If you can understand, I think that will be an achievement. So first part में मैंने आपको बताया आपको ऑब्जर्व कैसे करना चाहिए. ठीक है. इसकी एक छोटी छोटी एक्सरसाइजेस होती है, मैं जैसे कई बार बताता हूँ. When Amber was with me, I used to tell, now okay, close your eyes and tell me what all things are in my room. तो ये मुझे बताता सर ये वो करके, बट धीरे धीरे इज पावर एनहांस्ड, है ना. मैं इसको बाहर ले जाके कहीं खेत के आसपास कहीं रोड पे खड़ा कर देता. मैं क्लोज योर आईज एंड टेल मी व्हाट ऑल साउंड्स यू कैन हियर. So he used to tell me, sir, एक ट्रैक्टर जा रहा है, एक ये है, एक वो करके. He enhanced his concentration power, that eye for details, छोटी छोटी चीजों में, है ना. Very basic things. अगर मैं आपसे भी पूछूंगा अपने कमरे में बताओ मुझे कितनी चीजें हैं, आप नहीं बता पाएंगे आधे से ज्यादा चीजें, because है ना आप उतना ध्यान नहीं देते, कुछ भी चीज कहीं पे भी रखती है. You ask me which book is kept where, I'll tell you कि ये कहाँ पे पड़ी हुई है. Not that I am suffering from compulsive disorder order, है ना, obsessive compulsive disorder, उसी नहीं है, but अपनी चीजें ऑर्गेनाइज रखता हूँ. ओके. नाउ पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है. पिक्चर में आपको क्या क्या दिखाया जा सकता है. आप बोलते हो पता नहीं क्या पिक्चर दिखाएंगे. इतना घबराने की बात ही नहीं भाई. अच्छा अंबर, प्लीज टेल मी, है ना, गिव मी अ क्वेश्चन 5 minutes बिफोर व्हेन वी आर गोइंग टू द लिमिट, है ना. डू वी नीड टू डिस्कनेक्ट एंड जॉइन अगेन और वी कैन कंटिन्यू? Sir, the meeting will automatically get over and then we can rejoin the very same link. Okay, thank you. The meeting will get over by in next 6 minutes and 20 seconds. Okay, so हमें लॉग आउट करके दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा और इट विल हैपन ऑटोमेटिकली? नहीं सर, दोबारा बस क्लिक करके ज्वाइन करना पड़ेगा, दोबारा उसी लिंक Okay, boss. क्लिक करना. Perfect. Right. Okay, guys.
सो आप लोग अभी पता नहीं पीपीटीटी में क्या स्टोरी दिखाएंगे। मैं कह रहा हूँ इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या दिखाएंगे आपको, ऐसा क्या दिखाएंगे जो है ना इतना घबराने की जरूरत है? क्या क्या दिखा सकते हैं मैं आपको अभी बता देता हूं। कितनी पॉसिबिलिटीज है। नंबर 1 पॉसिबिलिटी, पिक्चर के अंदर सोलो कैरेक्टर हैज बीन शोन टू यू। सोलो कैरेक्टर मींस ओनली 1 कैरेक्टर। अब जेंडर वाइज क्या हो सकता है? अंजलि, आर यू राइटिंग? डियर, डोंट टेक एनी नोट्स, बिलीव मी, इट विल हेल्प यू मोर इफ यू कैन लिसन टू मी, है ना। आई एम सो हार्ड प्रेस, मेरे को बिल्कुल, मैं बहुत थका हुआ हूं, बट स्टिल आई नो मेड एन अटेम्प्ट कि यहां पे आके मैं बात करूं तुम लोगों से। सो आई विल रिक्वेस्ट, सुनो आप मेरी बात, यू नो। द फर्स्ट थिंग इज सोलो कैरेक्टर। द पॉसिबिलिटी उसमें क्या हो सकता है? उसमें हो सकता है कि, है ना, अंबर एक जगह दिखा दिया मेल कैरेक्टर, या दूसरी जगह फलक को दिखा दिया लेडी कैरेक्टर। जेंडर वाइज इधर कैन बी मेल और फीमेल, बट सिंगल कैरेक्टर, वन पॉसिबिलिटी। इसी के अंदर दूसरा शेड ये हो सकता है, यू आर सीइंग द फेस और यू आर सीइंग द बैक साइड। समबडी वाचिंग ए सनसेट और लुकिंग अदर साइड एंड यू सी ओनली द बैक, सो यू डोंट इवन नो व्हाट इज द एज, बट यू कैन अज्यूम, सेफ फॉर यू, हैप्पी सिचुएशन। तो एक पिक्चर में ये 3 शेड बनी। एक पॉसिबिलिटी ये है, सिंगल कैरेक्टर, इधर द फ्रंटल व्यू और द रियर व्यू, ठीक है। देन यू कैन राइट योर स्टोरी, दिस इज वन ऑप्शन, ठीक है। बैकग्राउंड अलग हो सकता है, मे बी सी बीच, मे बी माउंटेन्स, मे बी सिटिंग और स्टैंडिंग इन एग्रीकल्चर फील्ड, ठीक है, और स्टैंडिंग और सिटिंग नेक्स्ट टू द रिवर बैंक। बैकग्राउंड चेंज हो सकता है, बट एक कैरेक्टर। दिस इज सिनेरियो नंबर 1, ठीक है। नाउ सिनेरियो नंबर 2, मतलब पोस्चर्स अलग हो सकते हैं, एक ही होगा, या तो रनिंग है, या सिटिंग है, या थिंकिंग है, लाइंग ऑन द बेड। पोस्चर्स अलग हो सकते हैं, बट एक ही कैरेक्टर। दिस इज पॉसिबिलिटी नंबर 1। सिनेरियो नंबर 2, डियोस, 2 कैरेक्टर। नाउ जेंडर के हिसाब से इट कैन बी 2 मेल 2 फीमेल, और इट कैन बी कॉम्बो 1 मेल 1 फीमेल। इससे ज्यादा तो ऑप्शन बनते नहीं, ठीक है। दैट इज 1। अभी इसको आपको कैसे देखना चाहिए? 2 लोग हैं, 1 इज एज, सेकंड इज मूड, थर्ड इज द ड्रेस। ड्रेस से आपको पता लगेगा अर्बन एरिया का है, रूरल एरिया का है। बाय प्रोफेशन यू कैन आइडेंटिफाई कि ये स्टूडेंट लगता है, वर्किंग प्रोफेशन लगता है, आईटी सेक्टर में लगता है, यूनिफॉर्म पहनी है, फौज में लगता है, जो भी है। बट इट विल बी इजी फॉर यू टू कोरिलेट। नेक्स्ट थिंग, एज। भाई एज में 2 लोग एक जैसी उम्र के दिखाई दे रहे हैं, जैसे आप लोग बैठे हो स्क्रीन पे, तो क्या हो सकते हैं? फ्रेंड हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं। अगर उम्र में फर्क दिख रहा है, पहनावे में थोड़ा फर्क दिख रहा है, बॉडी पोस्चर उनका, जैसे एक बैठा है और एक सामने खड़ा हुआ है, तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इट कैन बी ए फादर एंड ए डॉटर, इट कैन बी ए मदर एंड ए सन, इट कैन बी बॉस एंड ए एम्प्लॉय, इट इज ए सीनियर एंड ए जूनियर, इट इज ए डॉक्टर एंड ए पेशेंट, डिपेंडिंग ऑन द प्रोफेशन। अगर आपने ठीक से आइडेंटिफाई कर लिया, डॉक्टर लग रहा है और एक सामने खड़ा हुआ है, एक रूरल टाइप है, एक अर्बन टाइप है, एक ये ज्यादा है, एक कम है, एक प्रोफेशन से स्टेथोस्कोप लगा के खड़ा है, दूसरा रूरल टाइप का कुछ है, हो सकता है एक डॉक्टर हो, एक पेशेंट हो, एक हो सकता है कि भाई शॉपकीपर ओनर हो, दूसरा सेल्स पर्सन हो। तो प्रोफेशन के हिसाब से, उम्र के हिसाब से, बैकग्राउंड के हिसाब से, देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज व्हिच एग्जिस्ट। It is not difficult to pick up that visible signature from the given picture and come to a firm conclusion. अब यहाँ पे प्लीज डोंट क्लटर योर माइंड कि इसको क्या बनाऊं, बॉयफ्रेंड बनाऊं, है ना, वाइफ हस्बैंड बना दूं, डॉटर बना दूं, इसको फ्रेंड्स बना दूं। आपने जो तय करना है कर लीजिए, बट फॉर गॉड सेक कीप इट माइंड कि यू आर रनिंग अगेंस्ट टाइम। 30 सेकंड है, इधर यू कैन हैव ए क्लैरिटी ऑफ माइंड और यू कैन होल्ड योर ग्राउंड, है ना। आप या तो अपना होल्ड योर ग्राउंड बाय शोइंग क्लैरिटी ऑफ माइंड, और यू कैन शो, है ना, कि समझ में नहीं आ रहा, क्लटर्ड, मन कुछ और कह रहा है, लिखना कुछ और चाहते हो। कई बार कैंडिडेट्स को मैंने देखा है, स्टोरी लिखता है फिर बर्बाद हो जाती है, एंड व्हेन आई गिव द रिव्यू वो कहता है सर एक्चुअली सर मेरे मन में आया था, मैंने सर लिखा नहीं, शिट, व्हाट शिट, इट इज एक्चुअली शिट नाउ। अगर आपके मन में आया है, कई बार आप देखोगे कि जो आपकी गट फीलिंग आती है, विच यू एक्चुअली सी ऑन द पिक्चर एंड फील, आप लिखते नहीं हो। I've seen people are apprehensive of taking risk, उनको लगता है मैं ज्यादा रिस्क ले रही हूँ। अरे अगर आपका मन बता रहा है कि यस ये चीज सही है और आप लग रहा है आप लिख दोगे, बट नहीं, एसएसबी में इंप्रेशन करना है, कुछ अलग करके दिखाना है, सबसे मजबूत स्टोरी लिखनी है। विद दीज काइंड ऑफ सुपरफिशियल रीजंस ना, यू लैंडेड अप इन अ सिचुएशन वेयर यू राइट ए स्टोरी, और एटलीस्ट अटेम्प्ट टू राइट ए स्टोरी विच इज नॉट ए ओरिजिनल स्टोरी। आप कुछ कहानी बनाने की कोशिश करते हो, यू ट्राई टू कुक अप ए स्टोरी,
प्लीज डोंट कुक अप स्टोरीज, राइट अ ओरिजिनल स्टोरी। ओरिजिनल स्टोरी जो मन कहता है विल ऑलवेज बी मोर कन्विंसिंग। आप अच्छे से लिख पाओगे विद मोर क्लैरिटी, एंड जब आप नरेशन की बारी आएगी तो आप देखोगे कि आप ज्यादा मजबूती से अपनी बात रख पा रहे हैं, ठीक है। जब आप पार्टिसिपेशन में भी आओगे तो यू विल फाइंड कि इट इज इजी टू टेक पीपल ऑन बोर्ड एंड टेल योर पर्सपेक्टिव कि यस दिस इज द कैरेक्टर, दिस इज द स्टोरी लाइन, दीज आर द एक्शंस एंड दिस इज द फाइनल आउटकम। जेंटलमैन लेडीज, आप अपनी बात अच्छे से रख पाओगे, ठीक है ना। ओके, तीसरी पॉसिबिलिटी है अपना 3 people और मोर। क्राउड हो सकता है, डिफरेंट सिनेरियोज, a scene from the bus stand, a scene from the railway station, students standing together, a crowd, some accident scenario, market in the background, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जहां पे 3 या उससे ज्यादा लोग, ठीक है। अब यहाँ पे लोग जब ऑब्जर्व करते हैं तो इतनी ज्यादा डिटेल में चले जाते हैं, वहां पे वो 50 लोगों को देखते हैं। यू डोंट हैव टू सी कि रेलवे स्टेशन का सीन है तो उसमें 2 आदमी खिड़की में बैठे हुए हैं, एक दरवाजे पे खड़ा हुआ है, 5 people going